Hello everyone, good morning. Today in this video we are going to learn a new poem. The name of the poem is The Tale of Custard the Dragon. In this poem we are going to see a dragon whose name is Custard, and that dragon was considered as coward by other creatures who are living with him. But when the time comes, he shows his tremendous bravery. So that we are going to see in this poem. So let's start. This poem is written in the style of a ballad. Ballad means a song or poem that tells a story. ठीक है, ballad का मतलब क्या है? A song or poem which tells the story. You must be familiar with ballads that narrate tales of courage or heroism. This poem is humorous ballad close to a parody. Parody means imitation of other work. ठीक है, किसी के वर्क में से इमिटेट किया हो उसे पैरोडी बोलते हैं. So let's start this poem. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Relio Trulio little pet dragon. Okay, so here it is mentioned that how many creatures were living inside that red wagon. ठीक है, वो वैगन या फिर घर के अंदर कौन कौन लोग रहते थे. सो सबसे पहले there was a girl. Okay, there is a girl whose name is Belinda in a white house. White house में एक छोटे से हाउस में रहती थी. With her there was a little black kitten. इसके साथ एक black kitten रहता था. And grey mouse and yellow dog. ठीक है, ये तीन एनिमल्स हैं. साथ साथ में a little red wagon, एक छोटा सा कार्ट भी था. एंड रेलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और इनके साथ साथ एक ड्रैगन भी वहाँ पर रहता था. सो टोटल देयर वर 4 एनिमल्स एंड बेलिंदा अ गर्ल. दिस 5 people or creatures were living in White House. Now the name of the little black kitten was Ink. Now remember the names of these animals. Now the name of the little black kitten was Ink. Kitten का नाम क्या था? Ink. And the little grey mouse, she called him Blink. और mouse का नाम था Blink. And the little yellow dog was sharp as mustard. ठीक है, और dog को वो mustard कह के बुलाती थी. But the dragon was a coward and she called him Custard. ठीक है, पर ड्रैगन को सब लोग कावड़ मानते थे. ठीक है, वो डरपोक था, इसलिए उसे वो कस्टर्ड कह के बुलाती थी. सो दीज आर द नेम्स ऑफ द एनिमल्स. नाउ लेट्स गो अहेड. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Okay, this is the description of Custard the dragon. It can be asked in 2-mark question. So just listen it properly. Custard the dragon had big sharp teeth. बड़े बड़े दांत थे उसके. And spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace. Chimney for a nose. ठीक है, उसके मुंह में से आग निकल रही थी. ठीक है, और नोज में से धुआं निकल रहा था. And Relio Trulio daggers on his toes. Daggers means sword, छोटे से छुरी जैसा. ठीक है, उसके दोनों टोज में, पैरों के दोनों टोज में क्या था? स्वॉर्ड था, डैगर्स थे. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. बेलिंदा वॉज अ ब्रेव Belinda was as brave as a barrel full of bears. ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि बेलिंदा कितनी ब्रेव थी. बेलिंदा ब्रेव थी जैसे कि एक पूरा का पूरा बैरल भरा हो बैर से. ठीक है, भालुओं से पूरा बैरल भरा हो, इतनी ब्रेव थी. एंड इंक एंड ब्लिंक chased lions down the stairs.
ठीक है, और इंक और ब्लिंक, ठीक है, वो किटन और माउस, वो भी इतने ब्रेव थे कि वो किसी लायन को भी पीछे छोड़ दे, ठीक है, मीन्स स्टेयर से नीचे उतार दे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, ठीक है, और मस्टर्ड कितना ब्रेव था, जैसे कि कोई टाइगर गुस्से में हो उतना वो ब्रेव था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, पर जो कस्टर्ड था वो डरपोक था और वो हमेशा एक सेफ केज के लिए पुकारता था, उसे वो सेफ केज चाहिए था। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनिमल्स, हाउ मच दे आर ब्रेव। नाउ लेट्स गो अहेड। बेलिंदा tickled him, tickled means tease him, she tickled him unmerciful, ठीक है, वो उसे बहुत ही चिढ़ाती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल, ठीक है, उसको पर्सिबल कह के बुलाते थे, कावर्ड क्रिएचर कह के बुलाते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रेलियो ट्रोलियो कावर्डली ड्रैगन, ठीक है, वो कहाँ पर बैठते थे सब लोग, वैगन में, रेड वैगन में बैठ के ये डरपोक कह के ड्रैगन को चिढ़ाते थे। बेलिंदा जिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, जिगल्ड मीन्स लाफ, जो बेलिंदा है वो बड़े जोर जोर से हंसने लगती थी उसको चिढ़ाने के बाद, जैसे कि पूरा घर हिलने लगता था उसकी हंसी से। एंड ब्लिंक सेड विक विच इज जिगलिंग फॉर अ माउस। Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage, ठीक है, उसको चिढ़ाते थे, बहुत चिढ़ाते थे, ठीक है, इतना बड़ा हो गया है फिर भी डरपोक है, ऐसा कह के उसे चिढ़ाते थे। और ये जो मस्टर्ड और इंक है वो उसे पूछते रहते कि तुम्हारी उम्र कितनी है, पर ये जो कस्टर्ड है, ड्रैगन है, वो हमेशा एक सेफ केज की मांगनी करता रहता है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, हमारे आसपास भी ऐसा होता है, हम किसी को बहुत चिढ़ाते रहते हैं, ठीक है, उसकी कोई ना कोई खामी की वजह से, और वो जो इरिटेशन की वजह से हम चिढ़ाते हैं तो उसको इरिटेट फील होता है, उसकी वजह से वो एक सेफ जगह पर रहता है, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो। तो उसी तरह से ये कस्टर्ड द ड्रैगन है, वो भी एक सेफ जगह की मांगनी करता है, ठीक है, बार बार मांगता रहता है। Now let's go ahead. Suddenly, they heard a nasty sound. Nasty means unpleasant sound. And Mustard growled, and they all looked around. Growled means threatening sound. जैसे ही वो nasty sound सुनाई देता है, तो मस्टर्ड जो डॉग था वो घबरा के घुर्राने लगता है। म्याउच cried Ink, and ooh cried Belinda. ठीक है, इंक भी म्याउच करके वहाँ से भागने लगती है और बेलिंदा भी डर के मारे चिल्लाती है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा मीन्स विंडो। क्यों, रीज़न क्या है इन लोगों का डरने का, क्योंकि वहाँ पे एक पायरेट घुस आया था जो विंडो से ऊपर चढ़ रहा था। पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्तौल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ कटलास ब्राइट, कटलास मीन्स शॉर्ट स्वॉर्ड, ठीक है, उसके दोनों हाथों में पिस्तौल है और उसके मुंह में उसने एक छोटा सा स्वॉर्ड रखा हुआ है और वो विंडो से धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड। ओके, आपने बहुत सारे मूवीज़ देखे होंगे, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन नाइट्स, ठीक है, उसमें जो पायरेट्स का आपने हुलिया देखा होगा, सेम यहाँ पर है, ठीक है, अपीयरेंस सेम है, बड़ी बड़ी ब्लैक बियर्ड है उसकी, और ही हैज़ वन लेग वुड, एक पैर उसका वुड का है, एंड ही हैज़ कम इन हर हाउस, इट मीन्स इट वॉज नो गुड, ठीक है, वो साइन अच्छी नहीं थी। अब बेलिंदा समझ गई थी कि अब उनके साथ बुरा होने वाला है। So you can be asked the description of this pirate in 2 mark questions. So you have to remember this. So in both his hand he has pistols and he held a cutlass or short sword in his teeth, and his beard was black and one leg was wood.
Okay, so this much you have to remember for the appearance of this pirate. Now let's go ahead. Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Yelp means loud noise. ठीक है, बेलिंदा वो पायरेट को देखकर चिल्ला उठती है, हेल्प हेल्प। पर जो मस्टर्ड है, डॉग है, जैसे ही आवाज़ सुनता है वो तुरंत ही घबरा के वहाँ से भागने लगता है। फ्लेड मीन्स भागना। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, और इंक जो है वो हाउस होल्ड के नीचे छुप जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। ठीक है, और जो माउस था ब्लिंक वो भी चतुराई से अपने होल में घुस जाता है। तो सब लोग अपने आप को ब्रेव मानते थे। बेलिंदा बोलती थी कि वो कितनी ब्रेव है, बैरल ऑफ बेर्स। ठीक है, पूरे भालुओं की टुकड़ी मिल जाए उतनी वो ब्रेव है। मस्टर्ड बोलता था कि वो जब कोई भी टाइगर गुस्सा हो उसके जितना वो ब्रेव है। और इंक और ब्लिंक क्या मानते थे, क्या बोलते थे कि वो किसी शेर को भगा सके उतने ब्रेव है। पर जब मुसीबत आती है तो तुरंत ही वो सब भागने लगता है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। पर उसी टाइम पे जो कस्टर्ड है वो कूद के सामने आ जाता है। क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयंस इन अ डंजन। डंजन मीन्स अंडरग्राउंड प्रिजन। ठीक है, प्रिजन हो, जेल हो, अंडरग्राउंड, उसमें वो टेल घुमाता हो वैसे वो वहाँ पर आ जाता है। विथ अ क्लैटर, क्लैटर मीन्स लाउड नॉइज, एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्विम। स्क्विम मीन्स ट्विस्ट द बॉडी एंड जैंगलिंग मीन्स मेटालिक साउंड। वो अपने जो पूंछ से, ठीक है, यहाँ वहाँ घुमाने लगता है, आवाज़ करने लगता है और पायरेट्स के सामने आ जाता है। He went at the pirate like a robin at a worm। ठीक है, और वो रॉबिन की तरह वहाँ पर आ जाता है। The pirate gaped at Belinda's dragon। ठीक है, और पायरेट क्या करता है, उसकी तरफ देखता है, ड्रैगन की तरफ गुस्से से। And gulped some grog from his pocket flagon। ग्रॉग मीन्स वन काइंड ऑफ ड्रिंक, यूजुअली सेलर यूजेस इट। ठीक है, सेलर जो ड्रिंक करते हैं उसको ग्रॉग कहते हैं। एंड फ्लैगन मीन्स बॉटल ऑफ वाइन। ठीक है, वो अपने वाइन के बॉटल में से कुछ घूंट भरता है, ठीक है, कुछ सिप लेता है और फिर क्या करता है, ही फायर 2 बुलेट्स बट दैट डिडंट हिट। ठीक है, और फिर वो ड्रैगन के सामने 2 बुलेट फायर करता है पर वो बुलेट ड्रैगन को लगती नहीं है। एंड कस्टर्ड गॉबर्ड हिम एवरी बिट। गॉबर्ड हिम मीन्स ईट स्पीडीली। पर कस्टर्ड तुरंत ही स्पीड में क्या करता है, तुरंत ही उसे निगल जाता है और इस तरह से पायरेट को मार दिया जाता है। नाउ यू कैन सी दैट हु इज़ ब्रेव। ठीक है, जो अपने आप को ब्रेव समझ रहा था या अपने आप को ब्रेव बता रहा था वो सच में ब्रेव नहीं थे। सच में ब्रेव कौन था, कस्टर्ड द ड्रैगन। जो दूसरे लोग उसे जब चिढ़ाते थे तब वो अपनी बहादुरी नहीं दिखा रहा था। ठीक है, तब वो नहीं बता रहा था कि वो बहादुर है, पर जब रियल सिचुएशन आई तब उसने प्रैक्टिकली, ठीक है, अपने एक्शन से सबको दिखाया कि वो ब्रेव है। हमारे आसपास भी ऐसा होता है बहुत बार। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, कभी भी कुछ भी नहीं बोलते, पर जब एक्शन का टाइम आता है और जब वो परफॉर्म करता है कुछ भी टास्क, तब हमें पता चलता है कि उसमें कितनी एबिलिटीज़ हैं। सो बाय दिस पोएम वी कैन सी दैट नेवर जज एनीबॉडी। ठीक है, कभी भी किसी को जज करना नहीं चाहिए क्योंकि कभी भी वो अपनी रियलिटी दिखा सकता है। राइट, नाउ लेट्स गो अहेड। बेलिंदा एम्ब्रेस्ड हिम। एम्ब्रेस्ड मीन्स हग हिम, उसको हग कर लेते हैं। मस्टर्ड लिक्ड हिम। ठीक है, मस्टर्ड उसे चाटने लगता है। नो वन मूड फॉर हिज पायरेट विक्टिम। मूड मीन्स एक्सप्रेस सॉरो, कोई भी सॉरो दिखा नहीं रहा है कि पायरेट मर गया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली एंड जयरेट। ओके, मीन्स मूव राउंड इन सर्कल। इंक एंड ब्लिंक उसके आसपास घूमने लगते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जो पायरेट को खा गया था उस ड्रैगन के आसपास
सर्कल में घूमने लगते हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, और उसी टाइम पे मस्टर्ड कुछ बोलता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मीन्स कन्फ्यूज। ठीक है, तुरंत ही मस्टर्ड फिर से अपनी बड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। मस्टर्ड बोलता है कि अगर मैं कन्फ्यूज ना हुआ होता तो मैं कस्टर्ड से भी ज़्यादा ब्रेव था। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। ठीक है, और इंक एंड ब्लिंक क्या बोलता है कि हम लोग 3 times ब्रेव है और तब दिखा सकते हैं। एंड कस्टर्ड सेड, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। और इतनी ब्रेवरी दिखाने के बाद भी पोलाइटली कस्टर्ड क्या बोलता है कि मैं एग्री करता हूँ कि तुम सब लोग मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो। बेलिंदा स्टिल lives in her little white house with a little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। अभी भी बेलिंदा वहीं पे उसी वाइट हाउस में रहती है उसके पालतू एनिमल्स के साथ। एक किटन है, एक माउस है, एक डॉग है और उसके साथ एक ड्रैगन है और रेड वैगन है। Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage। और अभी भी सब लोग बड़ाई करते रहते हैं कि मैं इतनी ब्रेव हूँ। ठीक है, डॉग कहता है मैं इतना ब्रेव हूँ, पर अभी भी जो कस्टर्ड द ड्रैगन है अभी भी सेफ केज के लिए चिल्ला रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द पोएम, वेरी नाइस पोएम, वेरी नाइस स्टोरी अबाउट कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, जो हमें बताता है कि बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आप में क्या एबिलिटी है वो बोलने से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक्शन से ही दिखाना चाहिए, बोलने से दिखाना नहीं चाहिए। Okay, this poem is by Ogden Nash. Now let's see the questions. Okay, here you can see the description about the writer. Ogden Nash wrote over 400 pieces of comic verse. ठीक है, उसने बहुत सारे comic verse means poems लिखी है। The best of his work was published in 14 volumes between 1931 and 1972. ठीक है, उसके जो best works थे वो इन 1931 से 1972 के बीच में पब्लिश हुए हैं। His work is perhaps best described in his poetic tribute by Anthony Buggs। ठीक है, एंथनी बग्स ने अपने पोएम में पोएटिक ट्रिब्यूट के द्वारा उसके वर्क को प्रशंसा की थी। सो हियर यू कैन सी दैट। नाउ सी द ग्लोसरी, द 2 meanings already I have informed you while I was explaining the poem. See the thinking about the poem. There are 9 questions which you have to write in your notebook. You understood the poem well and do not have any query now. If you have any query, you are free to ask me anytime. You are having my number. I am just repeating it once again. My number is 9033255323 and 8320060822. So you can contact me on my number whenever you like. Thank you. Have a nice day. Bye bye.